Paper has more patience than people. This is a very important line. This is a very important line and a very interesting line, I would say. Cannot cure myself. तो जिसको cure नहीं कर सकते, correct नहीं कर सकते, that is incorrigible. The next question says, what do these statements tell you about Anne Frank as a person? Now here are a few sentences जो अलग-अलग incidences के बारे में given है. Hello and welcome students. I am your English mentor Tripti Arora and today we are going to start chapter number 4 from your main course book, that is First Flight, and the name of the chapter as it goes is From the Diary of Anne Frank. So basically this girl, Anneliese Marie Frank, she is young yet so matured with her thoughts that at the age of 13, when we'll study about what she wrote in her journal, the diary that she kept as a journal, what were her thoughts regarding certain topics, how did she imagine those thoughts, and how mature she was to explain her feelings in those pages. So basically this chapter is very amazing and also entertaining because not only she was matured but she had enough strong points to prove her arguments on any topic. So basically, this wonderful girl, Anne Frank, she had a diary which was originally written in Dutch, but after her death, her father came forward and got translated the journal into different languages because he was so amazed at reading her diary that he felt that this should be published and everyone should get to know that Anne Frank was young yet matured. So students, let's start with the chapter without any delay. So before you read में हमें दिया गया है Anneliese Marie Anne Frank. She was born on 12th June 1929 and died in February or March 1945. Now why the date is not confirmed here, as we'll read in before you read only, because she was captured in a concentration cell and there when she died nobody knew of her. So the date is not confirmed that when did she lose her life. So they say Anneliese Marie Anne Frank was a German-born Jewish girl who wrote while in hiding with her family and 4 friends in Amsterdam during the German occupation of the Netherlands in World War II. So basically what happened was, as you all must have studied, when the Nazis gained power over Germany, they had to run away because they were the Jewish and the Jewish were on the run during the Nazi occupation. So as we studied in the World War II, as soon as they got power in Germany, they had to run and they ran to Amsterdam. That was the capital of Netherlands. Her family had moved to Amsterdam after the Nazis gained power in Germany. तो ये लोग एम्स्टरडैम जाके छुप गए थे जब नाजीज ने पूरा जर्मनी को कैप्चर किया. But were trapped when the Nazi occupation extended to the Netherlands. और जैसे ही नीदरलैंड्स में भी नाजी ऑक्यूपेशन एक्सटेंड हुई, वहां पर इन लोगों को पकड़ा गया और कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में भेज दिया गया. As persecutions against the Jewish population increased, the family went into hiding in July 1942 in hidden rooms in her father Otto Frank's office building. तो जैसे ही लोगों को पकड़ना बहुत ज़्यादा हो गया, जैसे ही जो persecutions थे वो फैलते चले जा रहे थे, तो इन लोगों को छुपने जाना पड़ा और ये लोग छुपे कहाँ? अपने पापा के ऑफिस बिल्डिंग में. और कितने साल तक ये लोग छुपे रहे? 2 साल तक. So after 2 years in hiding, the group was betrayed. Betrayed का मतलब धोखा देना होता है, but here betrayed means they were captured. Okay, उनको पकड़ा गया और पकड़ के भेज दिया गया. They were transported to the concentration camps. Concentration camps बनाए हुए थे नाजीज ने, वहां पर इन लोगों को भेज दिया गया. System where Anne died of typhus in Bergen-Belsen within the days of her sister Margot Frank. कुछ दिन पहले उनकी सिस्टर की डेथ हुई और उसके बाद Anne Frank की भी डेथ हो गई due to typhus. Her father Otto, the only survivor of the group, इनकी family friends सब में से सिर्फ इनके father बचे थे, that was Otto Frank. He returned to Amsterdam after the war ended. जैसे ही war खत्म हुआ वो वापस से Amsterdam गए to find that her diary had been saved, कि Anne Frank की डायरी जो है वो बच गई है. Convinced that it was a unique record, he took action to have it published in English under the name The Diary of a Young Girl. उनको इतना अच्छा लगा उस डायरी को पढ़ के, उन थॉट्स को पढ़ के जो एन सोचती थी इतनी छोटी सी उम्र में, कि उन्होंने बोला कि मैं इस बुक को इंग्लिश में पब्लिश करा दूंगा अंडर द नेम. और ये नॉवल भी है द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, विच इज एक्चुअली वेरी अम्यूजिंग. ओके,
Then they say the diary was given to Anne Frank for her 13th birthday. ये जो डायरी थी जो उनके पापा को मिली, ये उनका 13th birthday present था. And chronicles the events of her life. Chronicles means records the events of her life from 12th June 1942 until its final entry of 1st August 1944. तो ये 2 सालों की एंट्री उस बुक में थी और इन्हीं एंट्रीज के बिहाफ पर ही उनके पापा ने जज कर लिया that Anne Frank was young yet matured. It was eventually translated from its original Dutch. पहले ये ओरिजिनली लिखी गई थी डच में, इसको बहुत सारी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया एंड बिकेम वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली रेड बुक्स, और बहुत ही पॉपुलर बुक ये बन गई. देयर हैव आल्सो बीन सेवरल फिल्म्स, टेलीविजन्स एंड थिएट्रिकल प्रोडक्शंस एंड इवन एन ओपेरा बेस्ड ऑन द डायरी. मल्टीपल वर्क इस डायरी पर हो चुके हैं अलग अलग तरीके के, डिस्क्राइब्ड एज द वर्क ऑफ अ मैच्योर एंड इनसाइटफुल माइंड. इनसाइटफुल मीन्स थॉटफुल. ओके, the diary provides an intimate examination. Intimate means deep examination of daily life under Nazi occupation, कि किस तरह से लोग रहते थे, किस तरह का टॉर्चर होता था, कैसी लाइफ जीनी पड़ती थी. Anne Frank has become one of the most renowned and discussed of the Holocaust victims. Holocaust victims हम किनको बोलते हैं? जो मास मर्डर्स होते हैं, मास स्केल पे जो किलिंग होती है अंडर अ सर्टेन ऑक्यूपेशन. ओके, then starting on with the chapter, she says writing in a diary is really a strange experience for someone like me. कि मेरे लिए लिखना बहुत ही अजीब चीज है. Not only because I have never written anything before, सिर्फ इसीलिए नहीं क्योंकि मैंने पहले कभी लिखा नहीं है, मतलब वो डायरी कभी रखती नहीं थी, but also because it seems to me that later on neither I nor anyone else will be interested in the musings of a 13-year-old school girl. Musings बोलते हैं thoughts को, ठीक है. तो मुझे ऐसा लगता है कि ना मैं ना कोई और 13 साल की बच्ची क्या सोचती है, एक स्कूल गोइंग बच्ची क्या सोचती है. हम बोलेंगे कि 7th 8th क्लास का बच्चा है, क्या ही सोच लेगा, इतना क्या ही मतलब मीनिंगफुल कुछ बोल देगा. तो ऐसा लगता है उसको कि ना मैं ये डायरी दोबारा कभी पढ़ने वाली हूँ, ना कोई और मेरे 13 साल वाले उम्र के कोई भी थॉट्स पढ़ना पसंद करेगा. मुझे सब बच्चा समझ के छोड़ देंगे. Oh well, it doesn't matter. बट क्या फर्क पड़ता है? I feel like writing मेरा लिखने का मन है and I have an even greater need to get all the kind of things off my chest, that I'm holding a lot of things on my chest and I want to get them all off my chest. कि मेरे दिल में बहुत सारी बातें हैं जो मैं बोलना चाहती हूँ, किसी को बताना चाहती हूँ, बट मैं किसी को नहीं बता रही हूँ, तो मैं इस डायरी को वो सारी चीजें बता दूंगी. Paper has more patience than people. This is a very important line. She says paper has more patience than people. That means the paper won't judge. ठीक है, कि कितना ही लिखते जाओ, it will always give you more and more space to write. तो पेपर ना कभी आप अपनी प्रॉब्लम्स बताओगे तो ऐसा बोलेगा कि नहीं ये मेरे पास भी बहुत कुछ बताने के लिए, या मेरा सुन ले. People do that. ठीक है, आप अपना कुछ भी बताने चाहते हो तो लोगों को ऐसा लगता है कि पहले उनका सुन लो. You try to be a good listener, even if they are not, but they will not listen so closely and so intimately. ठीक है. Also the second part is whenever you tell something to anybody, they are going to judge you. Okay, judge your character, judge your attributes, your aspect of life, your thought towards life. Okay. But when paper does not do that. आपको जो भी लिखना है आप बिल्कुल क्लीन पेज पे लिखते चले जाते हो और पेपर आपको जज नहीं करता है. I thought of this saying on one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands, bored and listless. Listless means did not know what to do. Wondering whether to stay in or go out. कि घर में बैठूं या बाहर जाऊं, और समझ नहीं आ रहा था. और मैंने ये वाली सेइंग का उस दिन सोचा जिस दिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि करना क्या है, घर में बैठना है, किसी के साथ बाहर जाना है, किसी से बात करनी है. तो उन्हें कुछ भी समझ नहीं आया, फिर वो लिखना चालू कर देती हैं. I finally stayed where I was, और फिर मैं घर में ही रही, जहां पर मैं थी मैं वहीं पर ही रही. Brooding, yes, paper does have more patience, and since I'm not planning to let anyone else read this stiffed back notebook, grandly referred to as a diary, unless I should find a real friend, it probably won't make a bit of a difference. अब क्योंकि मैं बाहर भी नहीं जा रही हूँ और मेरा कोई ऐसा इरादा भी नहीं है कि ये मोटे गत्ते वाली जो नोटबुक है, यानी मोटे कवर वाली जो नोटबुक है जिसको हम डायरी बोलते हैं, इसको मैं किसी को पढ़ाऊं, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन भी नहीं है. तो क्या फर्क पड़ता है कि मैं इसमें कुछ भी लिखूं, until and unless I find a true friend. तो अगर मेरे को एक अच्छा दोस्त, सच्चा दोस्त मिल जाएगा तो मैं उससे अपनी बातें करूंगी और उसको अपनी डायरी पढ़ाऊंगी. Else I am not planning to show this diary to anybody. तो मैं जो मर्जी मैं वो लिख सकती हूँ. Now she says, now I'm back to the point that prompted me to keep a diary in the first place. कि सबसे पहले ऐसा हुआ क्या कि मैंने डायरी रखने का सोचा. I don't have a friend. कि मेरा कोई सच्चा दोस्त ही नहीं है.
Let me put it more clearly. Since no one will believe that a 13-year-old girl is completely alone in the world and I'm not. अब मैं बोलूंगी कि मैं पूरी तरह से अकेली हूँ, मेरे पास कोई नहीं है बात करने के लिए, बोलने के लिए, तो किसी को भी मैं बोलूंगी तो वो यही सोचेंगे कि भाई एक 13 साल की लड़की जो है वो पूरी तरह से अकेली कैसे हो सकती है अगर वो फैमिली के साथ रह रही है. तो बोल रही है कि मैं पूरी अकेली नहीं हूँ एंड आई एम नॉट, मैं अकेली अलोन नहीं हूँ. मेरे पास कौन कौन है इनकी फैमिली में. आई हैव लविंग पेरेंट्स, मेरे पास बहुत अच्छे और बहुत प्यार करने वाले पेरेंट्स हैं. 16-year-old सिस्टर है जिनका नाम मार्गॉट बताया है. एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड. कम से कम मेरे पास 30 लोग हैं जिनको मैं फ्रेंड्स रेफर करती हूँ. आई हैव अ फैमिली, लविंग आंट्स एंड अ गुड होम. प्यार भरी फैमिली है मेरी, बहुत अच्छे से लोग हैं मेरे आसपास, तो मैं अकेली नहीं हूँ. No, on the surface I seem to have everything. On the surface means ऊपर से देखोगे तो ऐसा दिखेगा कि मेरे पास सब कुछ है except my one true friend. बस एक ही चीज की कमी है और वो है एक अच्छा और सच्चा दोस्त. All I think about when I am with friends is having a good time. जब मैं दोस्तों के साथ होती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि मैं अच्छा टाइम बिताऊं, बट वो अच्छा टाइम ही है जब मैं दोस्तों के साथ हूँ, बट मैं उस टाइम को एंजॉय नहीं कर पाती हूँ. क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि लोग जज करेंगे, वो अपने सीक्रेट्स उन लोगों से शेयर नहीं कर पा रही हैं. So she says I can bring myself to talk about anything but ordinary everyday things. मेरे से हो ही नहीं पाता कि मैं रोजमर्रा की चीजों के अलावा किसी चीज के बारे में उनसे डिस्कस करूं, और मैं बस ऑर्डिनरी जो भी डे लाइफ होती है उसको ही डिस्कस करके रह जाती हूँ. What my feelings are, what I actually want, and I want to discuss all of these things with my true friend, जिसको मैं अपना बहुत ही अच्छा और सच्चा दोस्त मानती हूँ. So she says we don't seem to be able to get any closer. हम लोग ना इससे ज्यादा क्लोज हो नहीं पा रहे हैं जो भी मेरे अभी प्रिवेलिंग फ्रेंड्स हैं. एंड दैट्स द प्रॉब्लम. और मेन प्रॉब्लम यही है कि मैं उनमें से कोई भी सच्चा दोस्त नहीं ढूंढ पा रही हूँ. मैं ऐसा कोई भी इंसान नहीं ढूंढ पा रही हूँ जिससे मैं अपनी फीलिंग्स बिल्कुल ट्रूली शेयर कर पाऊँ. मे बी इट्स माई फॉल्ट दैट वी डू नॉट कन्फाइड इन ईच अदर. की गलती मेरी साइड से भी हो सकती है कि मैं सबको सब कुछ नहीं बताती हूँ. टू कन्फाइड इन इज टू पुट योर ट्रस्ट और फेथ इन समबडी. किसी पे पूरा भरोसा करना. ठीक है, तो अगर मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी तो दूसरे जने मुझे क्यों अपने लाइफ की सब बातें बताएंगे. तो प्रॉब्लम यही है कि मैं किसी पे भरोसा नहीं कर पाती और सबसे ओपन अप नहीं कर पाती अच्छे से. एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस क्यों मेरे को ये डायरी रखनी पड़ रही है, क्योंकि मैं अपनी ट्रू फीलिंग्स किसी से शेयर नहीं कर पा रही हूँ. इन एनी केस दैट्स हाउ द थिंग्स आर एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लायबल टू चेंज. ऐसा क्यों बोला है कि ये बदलने नहीं वाली है? क्योंकि राइट नाउ यू एज यू नो कि अभी वो लोग हाइडिंग में है, और जब वो हाइडिंग में है तो वो नए फ्रेंड्स भी नहीं बना सकती हैं, नए लोगों के आसपास भी नहीं जा सकती हैं. सो शी हैज टू स्टे इन दैट पर्टिकुलर एंड सेम एनवायरमेंट दैट शी इज इन राइट नाउ. तो उनको उस चीज का बहुत ध्यान रखना है और उसी के साथ साथ उनको अपनी फीलिंग्स का भी ध्यान रखना है. तो बोल रहे कि अब चीजें क्योंकि बदलने नहीं वाली हैं, इन्हीं लोगों के साथ रहना है, किसी भी तरह का चेंज अभी पॉसिबल नहीं है, तो फिर अब वो क्या सोच रही हैं, दैट इज व्हाई आई हैव स्टार्टेड राइटिंग द डायरी. कि यही रीजन है कि मैंने डायरी लिखना स्टार्ट किया है कि इसको एटलीस्ट मैं अपनी ट्रू फीलिंग्स बता पाऊंगी. Then, to enhance the image of this long-awaited friend in my imagination, I don't want to jot down the facts in the diary the way most people would do, but I want the diary to be my friend, and I'm going to call this friend Kitty. कि मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं करूंगी जैसा कि बाकी लोग करते हैं अपनी डायरीज, अपने जर्नल के साथ, कि वो अपनी ऑर्डिनरी डे लाइफ को उसमें एक्सप्लेन करते हैं कि उन्होंने उस दिन क्या क्या किया, कौन सी फीलिंग्स थी जो उन्होंने अपनी पीक पे फील करी, क्यों वो बहुत ओवरवेल्म फील करे. तो मैं सब कुछ, आई डोंट वांट टू जॉट डाउन. जॉट डाउन मींस नोट डाउन, कि मैं पॉइंटर्स नहीं बनाना चाहती कि मेरे साथ क्या क्या हुआ दिन में और मुझे कैसा कैसा फील हुआ. मैं इसको अपना दोस्त बनाना चाहती हूँ और दोस्त से मैं सिर्फ ऐसी ही बातें करना चाहती हूँ जो मैं बाकियों से नहीं कर पा रही हूँ. एंड इसीलिए उन्होंने इसको अपना फ्रेंड बोलते हुए एक नेम भी दे दिया है, एंड शी नेम्ड इट एज किटी. ओके, सो दिस आई हैव अटैच्ड अ ग्लिम्स ऑफ हर डायरी की किस तरह से उन्होंने अपना जर्नल मेंटेन किया था. सो बेसिकली दिस इज द हिडन पेजेस इन एन फ्रैंक्स डायरी deciphered after 75 years. ओके, सो दिस आई हैव शोन यू अ ग्लिम्स कि कैसा उनका डायरी था. Then there are a few questions of oral comprehension check. What makes writing in a diary a strange experience for Anne Frank? कि अजीब क्यों है उनके लिए लिखना, क्योंकि वो इस पर्सपेक्ट से नहीं लिखना चाहती कि वो अपनी लाइफ को उसमें कैप्चर करना चाहती हैं. वो सिर्फ इसीलिए लिखना चाहती हैं बिकॉज शी हैज अ लॉट ऑन हर चेस्ट, शी हैज अ लॉट ऑफ पॉइंट्स टू टेल पीपल, बट देन शी डज नॉट फाइंड herself confining in anybody, and she also does not want to trust anybody. So she wants her diary to be her friend, and she wants to tell her those things that she is not able to tell to anybody else. वो अगर किसी से और बात कर पाएंगी खुल के तो शायद वो डायरी में बहुत कुछ नहीं लिखेंगी, बट क्योंकि अभी उनको ऐसा लगता है कि वो किसी और से बात नहीं कर पाती हैं इतना खुल के, इसीलिए she had to
mentioned some things in the diary that could be only read by her one true friend. Why does Anne want to keep a diary? Because she has a lot to tell. Okay. Why did Anne think she could confide more in the diary than people? As she says, paper has more patience than people. Okay, paper would not pass judgments. Paper would not give arguments. So that is the reason that Anne wants to write in a diary rather than talking to people about how she is feeling or what does she feel about different people or different topics. Since no one would understand a word of my stories to Kitty if I were to plunge right in, I would better provide a brief sketch of my life, much as I dislike doing so. क्या बोल रही हैं कि ऑल्दो मैं किसी को ये पढ़ाने नहीं वाली हूँ, लेकिन अगर गलती से कोई मेरी डायरी पढ़ता है तो उनको समझ नहीं आएगा कि मेरी लाइफ कहाँ से स्टार्ट हुई अगर मैं डायरेक्टली प्लंज करूंगी. प्लंज इज टू डाइव. ओके अगर मैं डायरेक्टली आज की डेट डाल के आज से ही अपना जो भी फीलिंग्स है या जो भी मैं लिखना चाहती हूँ अपना जर्नल मेंटेन करने लग जाऊं तो शायद किसी को भी समझ में नहीं आएगा. अगर कोई पढ़ ले तो मुझे एक ब्रीफ स्केच देना पड़ेगा अपनी लाइफ का. ऑल्दो आई डिसलाइक इट, मेरे को नहीं पसंद है सब कुछ बताना, बट मुझे थोड़ा सा बताना पड़ेगा. माई फादर, द मोस्ट अडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन, कि मेरे पापा जो सबसे अच्छे पापा हैं इस दुनिया के, डिडंट मैरी माई मदर अंटिल ही वाज 36 एंड शी वाज 25. सो उनकी मम्मा 25 की थी और उनके पापा 36 के थे. माई सिस्टर मार्गॉट वॉज बॉर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926 एंड शी वॉज बॉर्न इन 1929. सो एन एज गैप ऑफ 3 years was there. तो मार्गॉट वॉज बॉर्न इन Germany, Frankfurt in Germany, 1926. I was born on 12 June 1929. I lived in Frankfurt until I was 4. 4 साल की जब तक मैं थी तब मैं फ्रैंकफर्ट में रही. You do not have to be very precise with the details. आपको सिर्फ और सिर्फ एक दो जगहों का याद रखना है, ठीक है. बस आप प्लीज उनके जो सिस्टर का नेम है और फादर का नेम है, क्योंकि इन्हीं ने ही जो इनकी डायरी में है मेन रोल प्ले करा है, इनका नाम हमें याद रखना है. माई फादर इमिग्रेटेड टू होलैंड इन 1933. उनके पापा इमिग्रेट करके चले जाते हैं. एंड देन माई मदर एडिथ होलैंडर फ्रैंक वेंट विद हिम टू होलैंड इन सितंबर. और उनके पीछे पीछे ही उनकी मम्मा भी चली जाती हैं. वाइल मार्गॉट एंड आई वर सेंट टू एचेन टू स्टे विद आवर ग्रैंडमदर. तो इटली में एक जगह है एचेन, वहां पर उनको और उनकी सिस्टर मार्गॉट को ग्रैंडमदर के पास छोड़ दिया जाता है कि ये अभी यहीं पर ही रहेंगे और यहीं पर ही पढ़ेंगे until the parents would settle there. Margot went to Holland in December and I followed in February. तो सितंबर तक उनकी मदर चली गई थी और फिर उनकी सिस्टर मार्गॉट जो है वो दिसंबर में जाती हैं. and she then followed her in February where I was plucked down on the table as a birthday present for Margot. जहां पर मुझे प्लंग किया गया यानी मुझे पटका गया टेबल पे as a birthday gift अपनी सिस्टर के लिए. I started right away at the Montessori Nursery School. तो सबसे पहला जो स्कूल था इनका वो Montessori Nursery School था, वहां से इन्होंने स्टार्ट किया. I stayed there until I was 6. 6 साल की उम्र तक उसी स्कूल में पढ़ा. At which time I started in the first form. First form is the first grade, first class. Okay. In the 6th form, जब इनकी 6th class आई तो my teacher was Mrs. Q. Perez, the headmistress. जो headmistress थी स्कूल की वही इनकी टीचर थी. At the end of the year we were both in tears. और साल के एंड में जब सेशन एंड हुआ तो हम दोनों बहुत रो रहे थे क्योंकि मे बी they were like meeting for the last time. उनका फेयरवेल का टाइम था. As we said, a heartbreaking farewell. Yes, क्योंकि वो एक दूसरे से बहुत ही हार्ट wrenching, heartbreaking farewell बोल रहे थे, एक दूसरे से दूर जा रहे थे. तो दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी, बहुत ही इमोशनल बॉन्डिंग हो गई थी और इसी वजह से दोनों को बहुत रोना आ रहा था. In the summer of 1941, grandma fell ill and had to have an operation. So my birthday passed with a little celebration. क्योंकि ग्रैंडमा का बड़ा सा कोई ऑपरेशन हुआ, उसकी वजह से मेरा बर्थडे बहुत अच्छे से नहीं मनाया गया in the year 1941. Then grandma died in January 1942. उसके बाद grandma की डेथ हो गई 1942 में. No one knows how often I think of her and still love her. कि किसी को पता नहीं है कि मुझे अभी भी कितनी याद आती है उनकी और मैं कितना प्यार करती हूँ उनसे. This birthday celebration in 1942 was intended to make up for the other. क्योंकि पिछले साल बहुत अच्छे से नहीं मना था मेरा बर्थडे, तो इस बार हमने अच्छे से मनाया था ताकि वो पिछले वाले को लाइक कोप अप कर पाए. And grandma's candle was lit along with the rest. और हम सबने grandma के लिए भी एक candle lit करी. Now this is a tradition that they pay homage to the dead ones or their elders. तो उसके लिए वो क्या करते हैं, उसके लिए वो एक candle जलाते हैं और उनकी blessings मांगते हैं. The 4 of us are still doing well. 4 of us means the father, mother, Margot and Frank, कि हम अभी भी अच्छे से रह रहे हैं. And that brings me to the present date of 20 June 1942. और इससे हम आज की डेट पर आ जाते हैं. That is 20 June 1942. And the solemn dedication of my diary. Solemn is sincere.
और क्योंकि मैं इस डायरी को अपना फ्रेंड बनाने वाली हूं तो आज से मैं अपना ये डायरी लिखना स्टार्ट कर रही हूं. सो दिस इज द डे दैट शी मेंशंस कि उनका डे जो है वो कैसे, मतलब क्या फीलिंग्स है जो वो बता रही हैं. ऑल्दो ये एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट एक दिन का हमें बताया है, बट इतने ही बहुत अम्यूज कर देने वाले एक्सट्रैक्ट जो है वो उनकी डायरी में, जो नॉवल में भी हमें मिल जाएंगे, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल में. Why does Anne provide a brief sketch of her life? वो क्यों एक brief sketch देती हैं? Although she says that she dislikes doing so, but then she is also thinking about other people. What if they read my diary? They will not get directly in touch with what my life was. What was happening in my life basically then. So she wanted to give a brief sketch कि अभी तक उनकी लाइफ कहाँ से स्टार्ट होकर कहाँ तक आ चुकी है. So what tells you that Anne loved her grandmother? Of course, she says that she misses her, she loves her, and she also lit a candle on her birthday. That means she was somewhere feeling sad for her grandmother's absence. Okay? Then, so now this is the page that she mentions how her day was. The school day, how she spent the day with her friends, her teacher, and what were the feelings that she was not able to tell to other people. Dearest Kitty, she says, our entire class is quaking in its boots. Quaking in the boots means they were shivering, trembling because of fear. उनको डर लग रहा था, सब लोगों के पैर कांप रहे थे. The reason, of course, is the forthcoming meeting in which the teachers decide who will move up to the next form and who will be kept back. रीजन ये है सबके पैर कपाने का कि टीचर्स डिसाइड करने वाले थे आज के दिन कि कौन अगली क्लास में पास होके जा रहा है और कौन इसी क्लास में रह जा रहा है. हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स. आधे से ज्यादा जो क्लास है वो शर्तें लगा रही है. जी एन जो इनकी फ्रेंड होगी, इनकी बेस्ट फ्रेंड, तो जी एन एंड आई लाफ आवरसेल्व्स सिली एट द टू बॉयज बिहाइंड अस. तो पीछे दो लड़के बैठे थे और हम उन पे इतनी जोर से हंसते हैं. सी एन एंड जैक्स हु हैव स्टेक्ड देयर एंटायर हॉलीडे सेविंग ऑन देयर बेड. जिन्होंने एक शर्त लगाई और उसके ऊपर अपना पूरा हॉलीडे सेविंग जो है वो स्टेक पर लगा दिया कि कौन हारेगा और कौन जीतेगा. और किस चीज की शर्त लग रही है भाई? फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, इट सुबह से रात तक सब लोग बोल रहे हैं यू आर गोइंग टू पास, नो आई एम नॉट, यस यू आर, नो आई एम नॉट. कि सब लोग बस ये बोले कि नहीं तू पास हो जाएगा, मैं नहीं हो पाऊंगा, तू हो जाएगा, मैं नहीं हो पाऊंगा. तो सब एक दूसरे से इस तरह की शर्तें लगा रहे थे. इवन जी इज प्लीडिंग ग्लांसेस. जी इज हर फ्रेंड जी एन. तो जी की प्लीडिंग ग्लांसेस यानी वो बहुत रिक्वेस्ट करते हुए देख रही थी कि प्लीज चुप हो जाओ, प्लीज चुप हो जाओ. तो सर दुख गया. और माई एंग्री आउटबर्स्ट, और मेरा गुस्से वाला रूप देखकर भी कोई उनको काम डाउन नहीं कर पा रहा था. वो लोग नहीं रुक रहे थे. पूरी क्लास सेम टॉपिक पे डिस्कशन करती ही चली जा रही थी. Then she says, if you ask me, there are so many dummies that about a quarter of the class should be kept back. कि मुझसे अगर पूछोगे तो मैं ये बोलूंगी कि क्लास में इतने सारे डमीज हैं, इतने सारे डम बच्चे बस घर से आते हैं, चुपचाप क्लास में बैठते हैं और दिन के टाइम पे घर चले जाते हैं. तो अगर मुझसे पूछोगे तो इतने सारे डमीज है कि मैं बोलती हूँ कि क्वार्टर ऑफ द क्लास यानी 1/3 क्लास को तो यहीं रोक लो, वापस से पढ़ाओ इनको सब कुछ. बट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन एंड वेरी interesting line, I would say. But teachers are the most unpredictable creatures on earth. जो teachers हैं वो सबसे ज्यादा उनके actions जो होते हैं, उनके words जो होते हैं, उनके decisions जो होते हैं, they are the most unpredictable ones on the entire planet. तो बोल रहे हैं कि teachers are the most unpredictable creatures on the earth, so we do not know कि वो लोग क्या डिसाइड करने वाले हैं और वो हमें कहाँ स्टैंड कराएंगे. I am not so worried about my girlfriends and myself, कि मेरी जितनी भी फीमेल फ्रेंड्स हैं और मैं हूँ, हमें अपने लिए कोई डर नहीं है. हमें तो पता है कि हम पास हो ही जाएंगे. We'll make it, हमारा हो जाएगा. The only subject I'm not sure about is maths. बहुत सारों का होगा ये तो कि सब में पास हो जाएंगे, बस मैम मैथ्स की बात मत करना, मैथ्स के बारे में मत पूछना. तो एन का भी सेम था. अब वो सब्जेक्ट से नहीं डरती थी, उनका थोड़े अपने टीचर से मेलजोल सही नहीं था. उनकी हमेशा थोड़ी बहुत आर्ग्यूमेंट्स या बोले डिसएग्रीमेंट्स हो जाती थी अपने टीचर से. सो शी सेज एनीवे वी ऑल वी कैन डू इज वेट. बट कर भी क्या सकते हैं, हम सिर्फ इंतजार कर सकते हैं. अंटिल देन वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज हार्ट. तब तक हम एक दूसरे की उम्मीद बन के खड़े रहते हैं कि कोई बात नहीं, हो जाएगा. I get along pretty well with all my teachers. मेरी सारे टीचर्स से बहुत अच्छा मतलब बातचीत हो जाती है. And I have a good bonding with every teacher. There are 9 of them, 7 men and 2 women. 7 male teachers हैं and 2 female teachers हैं. तो मेरी सबसे अच्छी खासी बॉन्डिंग है. Mr. Keesing, the old Fauji who teaches us maths, was annoyed with me for ages because I talk so much. अब मैथ्स वाले टीचर्स को ऑलरेडी, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि क्लास में डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल भी नहीं हो, सो दे वांट पिन ड्रॉप साइलेंस इन द क्लास. एंड एन फ्रैंक का एक ही बुरा आदत था, दैट शी वाज नॉट एबल टू सिट क्वाइटली इन द क्लास. तो उनकी और मैथ्स वाले टीचर की हमेशा थोड़ी अनबन चलती रहती थी, क्योंकि जो मिस्टर कीजिंग थे, ही इज सेड टू बी एन ओल्ड फौजी. ओल्ड फौजी इज अ पर्सन हु इज ड्रेस्ड अप इन really old style clothes. Okay,
लूज ट्राउजर्स, लूज शर्ट्स एंड ऑल। तो शी सेज कि हमारे टीचर जो ओल्ड फौजी थे ना, वो मतलब हमेशा मुझसे गुस्सा ही रहते थे क्योंकि मैं क्लास में बात बहुत करती थी, और बीइंग अ मैथ्स टीचर ही ऑलवेज वांटेड हर टू सिट क्वाइटली। तो इन लोगों की हमेशा थोड़ी सी अनबन चलती रहती थी। After several warnings, he assigned me एक्स्ट्रा होमवर्क। बहुत सारी वार्निंग्स उन्होंने मुझे पहले दे दी कि चुप रहो चुप रहो चुप रहो। फिर जब मैं चुप नहीं हुई तो उन्होंने मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क दे दिया, एंड ऐसे ऑन द सब्जेक्ट चैट बॉक्स। और होमवर्क भी क्या दिया कि ऐसे लिखकर लेकर आना, और सब्जेक्ट रहेगा चैट बॉक्स। चैट बॉक्स क्या होता है? दैट इज कॉन्टिन्यूसली चैटरिंग, बोलते चले जा रहे हैं। तो अब इस टॉपिक पे वो बेचारी क्या लिखेंगी, और चैट बॉक्स व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट, कि इसके बारे में क्या लिखेंगे। तो बोलते आई वुड वरी अबाउट दैट लेटर, कि बाद में सोचूंगी उसके बारे में। आई डिसाइडेड, आई जॉटेड डाउन माय टाइटल, द टाइटल इन माय नोटबुक। मैंने उस समय तो फटाफट से टाइटल लिख लिया अपनी नोटबुक में, tucked it in my bag and tried to keep quiet। और मैंने पूरी जान लगा दी, पूरी कोशिश कर दी बिल्कुल शांत रहने की क्लास में। That evening after I had finished the rest of my homework, so उस दिन इवनिंग में जब पूरा होमवर्क मेरा खत्म हो गया था, the note about the essay caught my eye। तो मैंने जहां पर वो नोट लिखा था अचानक से मेरी नजर पड़ती है कि हाँ ये भी तो होमवर्क है। I began thinking about the subject while chewing the tip of my fountain pen। बहुत सारे बच्चे की आदत होती है ना, सोचते सोचते पेन खाने लग जाते हैं, फिर एक हफ्ते बाद पता चलता है कि आधा पेन तो खा ही चुके हैं। तो सेम चीज वो बोलती है कि मैं सोच रही थी और उसी टाइम पे मैं च्यू कर रही थी अपना जो फाउंटेन पेन का टिप था वो। Anyone could ramble on and leave big spaces between words। किसी को भी अगर ये टाइम मतलब ये जो काम है ये टालना होगा, डॉज करना होगा, तो he would easily ramble on। कुछ भी स्क्रिबल कर देंगे, कुछ भी बड़े बड़े वर्ड्स लिख देंगे, कुछ भी लाइक मतलब बिना किसी हाथ पैर की चीज लिख देंगे, या फिर बड़ी बड़ी स्पेस छोड़ देंगे वर्ड्स के बीच में, लंबी लंबी लाइंस छोड़ के लिखते चले जाएंगे क्योंकि उनको सिर्फ होमवर्क कंप्लीट करना है। बट द ट्रिक वॉज टू कम अप विद द कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग। लेकिन उनको ये चीज प्रूव करनी थी कि बात करना कितना ज्यादा जरूरी है, कि अगर मैं इस टॉपिक को ऐसे ही छोड़ दूंगी, ये टॉपिक बस मजाक का बना के छोड़ दूंगी, तो शायद मुझे आगे बात नहीं करने देंगे। तो मेरा आइडिया ये था कि मैं इतनी कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट दूंगी कि मुझे अगली बार बात करने दिया जाए क्लास में। So what did she write? I thought and suddenly I had an idea। मैंने बहुत सोचा, फिर मुझे एक आइडिया आया। I wrote 3 pages Mr. Keesing had assigned me and he was satisfied। मैंने 3 पेज लिख दिए उसी टॉपिक पे और मिस्टर कीजिंग को पढ़ाए, और वो काफी सेटिस्फाई हो जाते हैं उस चीज से। I argued that talking is a student's trait and that I would do my best to keep it under control। कि मैं कोशिश कर सकती हूँ पूरी कि मैं कंट्रोल करूँ बात करना, लेकिन what she says is talking is a student's ट्रेट, कि बात करना तो बच्चों का कैरेक्टर होता है, बच्चे बात नहीं करेंगे तो कौन बात करेगा मैम। यस, तो शी सेज कि टॉकिंग इज अ स्टूडेंट्स ट्रेट, कि बच्चों का तो काम ही है, बच्चों का तो ट्रेट है, वो कैरेक्टर है बच्चों का कि हम बात करते ही हैं, हमारे पास टॉपिक आ जाते हैं अपने आप, गॉड नोज फ्रॉम वेयर, कि हमें बात करनी होती है और उसी टाइम करनी होती है जब टीचर को कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ाना होता है। And that I would do my best to keep it under control, कि मैं पूरी कोशिश कर सकती हूँ उसको कंट्रोल करने का, but I cannot promise that। But that I would never be able to cure myself of the habit since my mother talked as much as I did। कि मेरी मम्मी भी उतनी ही बात करती है जितनी मैं बात करती हूँ, तो फिर मैं कैसे रुक सकती हूँ बात करे बिना। If not more, and that there's not much you can do about an inherited trait, कि भाई ये चीज तो मैंने इनहेरिट करी है ना अपनी मदर से, तो इनहेरिटेड ट्रेट का तो ज्यादा क्योर भी नहीं है, सुधार भी नहीं हो सकता, तो क्या ही कर लेंगे। मिस्टर कीजिंग हैड अ गुड लाफ। उस समय मिस्टर कीजिंग को अच्छा खासा हंसी आया उस टॉपिक पे अबाउट माय आर्ग्यूमेंट्स, बट व्हेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माय वे थ्रू इन द नेक्स्ट लेसन, नेक्स्ट लेक्चर में जैसे ही मैं बात करने लगी, फिर भी ही असाइन्ड मी द सेकंड एसे, एंड दिस टाइम इट वाज सपोज्ड टू बी ऑन an incorrigible chatterbox। What is an incorrigible chatterbox? इनकॉरिजिबल का मतलब होता है समथिंग दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, एक ऐसी चीज जिसको कभी सही नहीं किया जा सकता। तो उन्होंने उस बेचारी को क्या टॉपिक दे दिया? एन इनकॉरिजिबल चैट बॉक्स, एक ऐसा चैट बॉक्स जिसको कभी कोई सही नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने अभी अभी बोला कि ये इनहेरिटेड ट्रेट है। आई कैन नॉट क्योर दिस, कहां बोला था? ये रहा, आई कैन नॉट क्योर माई सेल्फ। तो जिसको क्योर नहीं कर सकते, करेक्ट नहीं कर सकते, दैट इज इनकॉरिजिबल। तो उनके सर भी इतने ज्यादा क्रिएटिव है स्ट्रिक्ट होने के साथ साथ कि उनको उन्हीं के हिस्से का टॉपिक, उन्हीं के तरह का टॉपिक उन्होंने दे दिया। नाउ व्हाट हैपेंस नेक्स्ट इज आई हैंडेड इट इन, मैंने हैंड इन करा अपना जो भी लिखा था मैंने नोट, एंड मिस्टर कीजिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 होल लेसन्स। और ऐसा कुछ मैंने लिख दिया कि बाकी के आगे के 2 लेक्चर्स तक उन्होंने मुझे कुछ नहीं बोला। हाउएवर ड्यूरिंग द 3rd लेसन he had finally had enough।
2 लेक्चर्स तक उन्होंने छोड़ दिया, लेकिन 3rd लेक्चर में उनको फिर ही बहुत गुस्सा आ गया क्योंकि मैं कॉन्टिन्यूसली बातें कर ही रही थी. And Frank, as punishment for talking in the class, write an essay entitled "Quack Quack Quack," said Mistress Chatterbox. ये कैसा टॉपिक हुआ? क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स. और इस पर वो क्या लिखेंगी, तो वो खुद इतना कंफ्यूज हो जाती है. बट उस समय पर फिर उनको समझ नहीं आता, तो जो मिस्टर कीजिंग है वो बेचारी एन को डांट रहे हैं क्योंकि वो बात कर रही है. बात तो करना स्टूडेंट रेट है, वो कैसे रोके खुद को, ऑलरेडी समझा चुकी है. बट सर भी नहीं समझ रहे और एन भी नहीं समझ रही, तो उन्होंने एक अजीब सा टॉपिक दे दिया है. बट एन बीइंग वेरी क्रिएटिव, वो इसके लिए भी एक तोड़ निकाल लेती है. नाउ लेट्स सी how would she find a way out. The class roared means they burst out laughing. ठीक है, तो लाइक लॉल हो गया उन सभी का. तो क्लास जो थी वो पूरी तरह से हंसने लगी एंड they literally bursted out laughing. I had to laugh too. मुझे खुद हंसी आ गई वो टॉपिक सुन के. क्वैक 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 क्या है ये. दो I had nearly exhausted my ingenuity on the topic of chatterboxes. मैंने अपना जितना भी, ingenuity का मीन्स होता है ओरिजिनलिटी, तो मैंने अपना जितना भी ओरिजिनल आइडियाज थे मेरे दिमाग में, मैंने वो सब खत्म कर लिए थे ऑलरेडी. यहाँ तक के चैटर बॉक्सेस वाले टॉपिक पे मैं ऑलरेडी 3 पेजेस फिर 3 पेजेस ऑलरेडी बता चुकी थी. अब इसके बारे में और क्या लिखूं. It was time to come up with something else. अब कुछ अलग ही करना पड़ेगा, लेकिन छोड़ तो नहीं सकते, करना तो कुछ पड़ेगा. Something original. My friend Sane, तो उनकी एक फ्रेंड थी Sane, who's good at poetry, offered to help me write the essay from beginning to end in verse. तो इस बार उन्होंने क्या करा कि ऐसे नहीं लिखा, उन्होंने एक पोएम ड्राफ्ट करने का सोचा. तो उन्होंने एक वर्स बना लिया, यानी कि वर्डिंग्स जो थे वो एन फ्रैंक के ही थे और उनको वर्सेस में यानी पोएम में फ्रेज करना उनकी फ्रेंड सेन का काम था. And I jumped for joy. मैं खुशी से कूदी जब मेरा वो काम खत्म हो गया. Mr. Keesing was trying to play a joke on me with this ridiculous subject. इतना pathetic subject मुझे दे दिया. इतना basically ridiculous means very pathetic. Okay, something that is terrible. But here ridiculous means something very humorous. ओके तो मिस्टर कीजिंग जो थे वो एन की मजाक उड़वाना चाहते थे क्लास में. एक ह्यूमर क्रिएट करा उन्होंने ये वाला टॉपिक देखकर. तो वो बोल रहे हैं कि मिस्टर कीजिंग वाज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी. वो मेरा जोक बनाना चाहते थे ये रिडिकुलस सा सब्जेक्ट देखकर, बट आई वुड मेक श्योर दैट द जोक वाज ऑन हिम. नाउ दिस इज एग्जैक्टली व्हाट यू डू नॉट हैव टू डू. ओके, नेवर बी रिवेंजफुल टुवर्ड्स योर टीचर्स. तो बोल रही है कि मैंने ये मेक श्योर किया कि जोक जो है वो मिस्टर कीजिंग का ही बन जाए, मेरा ना बने. ठीक है, मैं अपना नेसेसिटी बता रही हूँ कि बात करना जरूरी है मेरे लिए, तो मेरा प्लीज मजाक ना उड़ाया जाए. ठीक है, I finished my poem and it was a beautiful one. Sorry, it was beautiful. मैंने अपना पोएम खत्म किया और वो बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही ब्यूटीफुल सी पोएम बन जाती है. It was about a mother duck and a father swan with 3 baby ducklings who were bitten to death by the father because they quacked too much. सोचो एक ऐसी दुनिया जहां पर एक डक, बतख और एक स्वान फादर और मदर का रोल प्ले कर रहे हैं और उनके पास 3 बेबी डकलिंग्स हैं और पापा स्वान ने सिर्फ उन बेबी डकलिंग्स को इसीलिए बाइट कर करके मार दिया क्योंकि वो बात ही बहुत करते थे. तो बेसिकली ये क्या था, ये एक सरकाज़म था उनके टीचर के लिए कि आप बस मुझे ऐसे ही बिट कर करके मार मत देना क्योंकि मैं बात करती हूँ. तो वो एक बेचारा विक्टिम कार्ड प्ले करना चाह रही थी और उन्होंने अपने टीचर को जो है वहां पर सरकास्टिकली रोस्ट करने की कोशिश करी कि प्लीज आप मेरी लाइफ मत ले लेना जस्ट बिकॉज आई टॉक टू मच. ऑलरेडी इतना होमवर्क दे देते हो और उसके बाद भी मेरे सारे के सारे ओरिजिनलिटी जो मेरे अंदर बची थी वो खत्म हो गई. तो प्लीज इसके बाद कोई और होमवर्क मत देना, इसके बाद आप मेरे प्राण मत मांगना मुझसे. नाउ luckily, Mr. Keesing took the joke the right way. He read the poem to the class, adding his own comments and to several other classes as well. तो लकीली हुआ ये कि मिस्टर कीजिंग ने उस चीज से वो ऑफेंड नहीं हुए और बिल्कुल भी रिएक्शन जो था वो ऑफेंसिव नहीं था. तो इस चीज की खुशी बहुत ज्यादा होती है एन फ्रैंक को. एंड उन्होंने ये पूरा पोएम जो है वो क्लास को सुनाया और बीच बीच में अपने कमेंट्स भी ऐड करते चले गए एंड टू सेवरल अदर क्लासेस, और बाकी क्लासेस में भी जाकर उस पोएम को नरेट किया. Since then I have been allowed to talk and haven't been assigned any extra homework. तो किस्मत देखो, मेरी इतनी प्यारी किस्मत है कि उस दिन के बाद से मुझे बिना कोई एक्स्ट्रा होमवर्क मिले बात करने दिया जाता है क्लास में. तो स्टूडेंट्स, अगर आपको भी बात करनी है तो आपको इतना क्रिएटिव बनना पड़ेगा. ऑन द कॉन्ट्ररी, मिस्टर कीजिंग इज ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीज डेज. कि अब इसके विपरीत होता ही है कि मुझसे ज्यादा मिस्टर कीजिंग जोक करते रहते हैं क्लास में. तो जितना वो पहले स्ट्रिक्ट थे अब वो उतना ही फ्रैंक हो गए थे. जितना वो पहले हमेशा चुप कराने पे लगे रहते थे अब वो उतना ही खुल के बात करते हैं. सो बेसिकली दिस इज
a part of a journal, so she writes yours and extracted from the diary of a young girl, जो उनकी पूरी novel है, with slight adaptations. कुछ changes जहाँ पर required हैं, वो changes उन्होंने यहाँ पर इस chapter में करके दिए हैं. So this was the entire chapter, students. Now there are a few questions. ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक के क्वेश्चंस देख लेते हैं. Why was Mr. Keesing annoyed with Anne? Mr. Keesing क्यों परेशान थे? क्योंकि Anne बहुत ज्यादा बात करती थी. What did he ask her to do? Always assigned her extra homeworks. How did Anne justify her being a chatterbox in the essay? That it is an inherited trait. She has inherited the same from her mother. Do you think Mr. Keesing was a strict teacher? Of course he was one initially, but gradually he changed and he allowed her to talk once he was satisfied with her arguments. What made Mr. Keesing allow Anne to talk in the class? Her wonderful poem about the baby ducklings and being bitten by their father for talking too much. Okay, so now these are some of the questions from the oral comprehension check. Thinking about the text के कुछ questions हमें यहाँ पर given है बच्चों. Was Anne right when she said that the world would not be interested in the music of a 13-year-old? Of course she was not. Now her diary is published. तो इसमें तो हम कैसे बोल सकते हैं कि कोई भी उनकी म्यूजिक से, अभी इतना वंडरफुल सा चैप्टर हमने पढ़ लिया है और इसमें भी 2-3 लाइनें वो इतनी गजब की मारती हैं. पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रीचर्स ऑन अर्थ, टॉकिंग इज अ स्टूडेंट्स ट्रेड. तो ये इतनी कमाल की लाइनें जो वो बोल रही है हर कोई नहीं सोच पाता. तो ऑफ कोर्स शी इज अ डायमंड. ओके, There are some examples of the diary or journal entries in before you read section. कुछ part उन्होंने जैसे हमने before you read में पढ़ा है. Compare these with what Anne writes in the diary. What language was the diary originally written in? ये हमने अभी देखा. It was originally written in Dutch. Okay, it has been translated into several languages. In what way is Anne's diary different? Anne की diary different क्यों है? तो journal में कुछ चीजें जैसे नाजी ऑक्यूपेशन मेंशन्ड है, उनका मरना, उनकी फैमिली का मूव करना, हाइड करना, ये सब गिवन है और उसी का ही मतलब एक सटल ह्यूमर के साथ तो बिल्कुल एक अलग सा ही डायरी के अंदर का जो हम पार्ट पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल अलग फीलिंग से लिखा हुआ है. ओके, कहीं पर ह्यूमर है, कहीं पर लाइक सरकाज़म है, बट जितना ज्यादा सीरियस वाला फैक्ट हम लोग बिफोर यू रीड में पढ़ रहे थे वैसा हमें कहीं भी इस डायरी में मेंशन नहीं मिला. तो हमें दोनों चीजों को, दोनों सेक्शंस को कंपेयर करना है और बाकी के जो 2 क्वेश्चंस है उनको आंसर करना है. Why does Anne need to give a brief sketch about her family? Anne क्यों brief sketch देती है अपनी family का, although वो dislike करती हैं उसको. Does she treat Kitty as an insider or an outsider? Definitely she considers Kitty as a best friend, one true friend. तो she was an insider. और वो क्यों देती है brief sketch? क्योंकि she wants कि if anybody ever reads her diary, they should get to know who she was and why she started writing diary in the first place. Okay. How does Anne feel about her father, her grandmother, Mrs. Cuperus and Mr. Keesing? चारों के बारे में बताना है. ग्रैंडमदर के बारे में क्या सोचते हैं, पापा के बारे में अपनी हेड मिस्ट्रेस मिसेस क्यूपरस और मिस्टर कीजिंग, चारों के बारे में वो क्या सोचते हैं, आपने उनकी फीलिंग्स बतानी है. What do these tell you about her? इनसे उनका कैसा बॉन्ड था, एन फ्रैंक कैसी गर्ल है, इन लोगों से रिलेशन में हमें बताना है. ओके, What does Anne write in her first essay? तो सबसे पहले वो अपने ऐसे में क्या लिखती हैं, that talking is a student's trait and nobody can help it. Anne says teachers are the most unpredictable creatures. Is Mr. Keesing unpredictable? How? Because she was not very sure that he would take the joke the right way as she wrote in the poem. But then he did. And that was like luckily enough that happened because she was very unsure of that. And being such a strict teacher that he would assign her homeworks after homeworks, she was not very sure that he would like what she wrote in the diary. So yes, he is a little unpredictable, that he was convinced with the arguments that yes, she needs to talk and she should be allowed to talk in the lectures. But afterwards, yes, he was very leisure, he was feeling leisurely and he was feeling very like free, and he also tried to take the joke the right way. He also tried to laugh along with the class. So yes, teachers are somewhat unpredictable. Earlier he was not ready to accept whatever Anne said, but then later on in the chapter we see that yes, he was convinced with her arguments. Then the next question says, what do these statements tell you about Anne Frank as a person? Now here are a few sentences जो अलग-अलग incidences के बारे में given है. तो आपने Anne को जज करके बताना है, उनके कैरेक्टर के बारे में बताना है कि यहाँ पर वो कहाँ पर वो इंटेलिजेंट लग रही हैं, कहाँ पर वो मेच्योर फील कर रही हैं, कहाँ पर वो इमोशनल हैं, कहाँ पर वो सेंटिमेंटल हैं. तो इन वर्ड्स के बिहाफ पे आपने ये सेंटेंसेस को नेम करना है. ओके, so these I suppose you can do on your own because this is easy enough. Now here are a few questions from the previous year
First question says that it's an extract based question, students. In summer of 1941, grandma fell ill and had to have an operation, so my birthday passed with little celebration. One inference निकालना है. Inference ये है that she was emotionally connected, emotionally attached to her grandmother. She had a great emotional bond with her grandmother. What was the first education where she started her first education? So that was in the Montessori nursery school. Next she says, who was Mrs. Cuperus? What kind of relationship did she share with her? तो मिसेस क्यूपरस कौन थी? द हेड मिस्ट्रेस ऑफ द स्कूल एंड ऑल्सो एंड्स टीचर. ये रहा, माई टीचर वॉज मिसेस क्यूपरस, द हेड मिस्ट्रेस, एंड एट द एंड ऑफ द ईयर वी वर बोथ इन टीयर्स एज वी सेड अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल. यानी कि जब वो बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हैं किसी टीचर से तभी तो हार्ट ब्रेकिंग होता है, उन टीचर्स को छोड़ के जाना. तो शी सेज कि उनका बहुत ही इमोशनल अटैचमेंट हो गया था उनकी टीचर के साथ भी. देन सब्स्टिट्यूट द वर्ड हार्ट ब्रेकिंग इस सेंटेंस में हमें करना है. एट द एंड ऑफ द ईयर वी वर बोथ इन टीयर्स एज वी सेड अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल. तो इसके लिए आप बहुत सारे वर्ड यूज कर सकते हो बच्चों. Emotional, grief stricken, ओके, इमोशनल, हार्ट व्रेंचिंग, ग्रीफ स्ट्रिकन, सेंटिमेंटल. तो कोई भी ऐसा जो दिखा रहा है कि एक इमोशनल ब्रेकडाउन उनका हुआ था जब वो अपनी टीचर को छोड़ के जा रही थी. Then next she says, Amanda from the poem, Amanda is a teenager like Anne Frank and lives in her fantasy world, whereas Anne is a chatterbox. What conversation will Anne Frank have with Amanda about different perspectives of life? Write your answer in about 120 words. Now this is a question from 2024 and you have to write it in 120 words. यानी कि एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है. ऐसा जब भी क्वेश्चन आता है तो हम कॉन्वर्जेशन क्रिएट करते हैं. ऑल्दो आजकल हमें एग्जाम्पल के तौर पे आ रहा है. फॉर एग्जाम्पल, अमांडा स्टार्टेड बाय हाई, अमांडा सेड हाई एंड हाउ आर यू. सो एंड सेज हाउ अमांडा, हाउ हैव यू बीन. मे बी दे आर नेक्स्ट डोर नेबर्स. तो अमांडा ज्यादा रिस्पॉन्सिव नहीं है, वो बोलती नहीं है, और एन फ्रैंक बोलती बहुत है बिकॉज शी इज अ चैटर बॉक्स. तो दोनों के बीच में क्या कॉन्वर्जेशन हुई है, नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग को बता सकते हैं. किस तरह से मिस्टर कीजिंग ने एन फ्रैंक को होमवर्क्स दे दे के उनका जो आर्ग्यूमेंट स्किल्स हैं वो डेवलप करवा दी हैं, उसके बारे में आप यहाँ पर बता सकते हैं. और पर्सपेक्टिव अबाउट डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ की अमांडा कुछ भी आर्ग्यूमेंट्स देती नहीं है. जब उनसे कुछ बोलते हैं तो वो सिर्फ सोचती रहती हैं, वो अपने फैंटेसी वर्ल्ड में ही रहती हैं. बट एन जो है वो हर एक चीज को रियल लाइफ में जस्टिफाई करना जानती है. तो अलग अलग पर्सपेक्टिव्स पे आप उन दोनों का कॉन्वर्जेशन दिखा सकते हैं. देन बोला, यू हैव बीन चोजन टू एड्रेस द स्कूल इन द स्कूल असेंबली टू स्पीक ऑन द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस. द बॉल पोएम से पिक करा है क्वेश्चन मर्ज करने के लिए एन फ्रैंक के साथ. एंड द रेजिलियंस ऑफ द ह्यूमन स्पिरिट ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ क्राइसिस. की ह्यूमन स्पिरिट जो है ना, हमें वो लूज नहीं करना चाहिए. इंसानों को होप नहीं छोड़नी चाहिए अगर क्राइसिस होते हैं तो भी. अब जैसे एन फ्रैंक भी हैं, वो भी क्राइसिस में रही हैं, वो भी एक पार्ट रही है, मतलब उनकी लाइफ भी पार्ट रही है क्राइसिस का. तो किस तरह से उन्होंने जब अपनी फैमिली के लोगों को लूज करा, उन्होंने अपनी सिस्टर को लूज करा, उन्होंने अपने घर को लूज करा, तो किस तरह की फीलिंग उनके हार्ट में आई होगी, और किस तरह से उन्होंने एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस को देखने के बाद भी कोप अप किया होगा. ठीक है, शी मस्ट हैव फेल्ट वेरी रिडिकुलस, शी मस्ट हैव ब्रोकन इनटू पीसेस, बट देन अगेन शी हैड टू बिल्ड अप her heart very strong. So prepare a speech draft with reference to the commonality of the theme, ball poem और by John Berryman और from the diary of Anne Frank. दोनों ही चीजें epistemology of loss को बता रही हैं. किसी ने कुछ खोया है, तो किस तरह से ह्यूमन हार्ट को बहुत स्ट्रॉन्ग रखना जरूरी है हमारे लिए. किस तरह से हम स्टार्ट कर सकते हैं. गुड मॉर्निंग एवरीवन. टुडे आई वुड लाइक टू डिस्कस 2 pieces of literature that offer a powerful insight into how to deal with loss and the resilience of a human spirit required during the time of crisis. तो ये हमारी स्टार्टिंग हो सकती है कि आज मैं इस बारे में बात करूंगी, और इन्हीं दोनों टॉपिक्स का इन्फेरेंस लेना है. द बॉल पोएम का इन्फेरेंस लेना है और फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक का इन्फेरेंस लेना है. दोनों ने किस तरह से लॉस को देखा, बट किस तरह से उन्होंने अपने अंदर की लाइफ जो थी वो लूज नहीं करी. बॉय ने भी बाद में समझ लिया कि ये उसका पहला लॉस था और किस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको सीख जानी है. खत्म कैसे करेंगे? टू कंक्लूड आई वुड लाइक टू से दैट मुझे ये बोलना है कि किस तरह से हमें अपने आप को, हमारा हार्ट कितना ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए. ऐसा भी नहीं बोल रहे कि स्टोन हार्टेड हो जाइए या कोल्ड हार्टेड हो जाइए, बट इतना स्ट्रांग हमें रहना है हमेशा कि कोई भी चीज हमें ब्रेक डाउन वाले रास्ते पर ना लेकर जाए. नाउ ऑल्सो देयर इज वन थिंग टू गेन मार्क्स इन दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन स्टूडेंट्स, योर आंसर शुड बी वेरी ऑप्टिमिस्टिक. ओके, हमेशा ऑप्टिमिज्म फॉलो करना है, कहीं ना कहीं होपफुलनेस दिखानी है, होपलेस नहीं होना है, और ये नहीं दिखाना दैट द वर्ल्ड वुड शैटर एंड सो वुड आई. ओके, कि दुनिया खत्म भी होगी तो भी कुछ नया तो निकल कर आएगा उसमें से. सो यू हैव टू बी वेरी ऑप्टिमिस्टिक, बिकॉज इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ये इंटेलेक्चुअल क्वेश्चंस पूछे ही आपके कॉन्वर्सेशन के लिए जाते हैं, आपके इंटेलेक्ट के लिए जाते हैं, एंड आपके ओपिनियंस के लिए. सो ट्राई टू बिल्ड अ पॉजिटिव और एन ऑप्टिमिस्टिक ओपिनियन टुवर्ड्स थिंग्स. ओके, जितने ज्यादा अभी वाले क्वेश्चंस आजकल पूछे जा रहे हैं, जितने ज्यादा प्रैक्टिस करके जाएंगे उतने ज्यादा ही आप मार्क्स गेन करेंगे. ओके, सो
This was all about this particular chapter, students. Here we are ending the video, but before we end the video, I want to tell you that High Profile brings you videos of all the fields, from journal affairs, current affairs to career counseling and parental guidance. So you can also share this particular channel and video with your friends, parents, relatives and whomsoever you want to be developed and high profile. Also, we have some amazing shlokas from Bhagavad Gita that would change your perspective towards life and fill you with optimism as we require in the chapter. So please subscribe to the channel, hit the bell icon and like the video and share it with your friends as much as you can. Thank you so much for watching. Have a good day.